Namaskar to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today in this video, I will discuss part 2 CCS Pension Rules 2021. It is from Rule 7 to 10. In first part, already I had discussed Rule 1 to 6. And you know that this new CCS Pension Rules 2021 replaced CCS Pension Rules 1972. It is related to the old pension, and we know that it came to effect from December 20, 2021. So my friends, if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel so that you can get notification for my upcoming videos. So first of all, Happy New Year to all of you. So my friends, in my description box also you can get my Telegram link. Click on it and join my Telegram channel so that you can avail all the videos. So now I am going to discuss part 2 CCS Pension Rules 2021. Rule 7, it is pension and family pension subject to future good conduct. यदि कोई पेंशनर कुछ मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व होता है तब जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो पार्ट ऑफ द पेंशन और फुल पेंशन को विथहेल्ड कर सकता है और विथड्रॉ कर सकता है. इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट वन. सो इट इज़ मेनली डिपेंड अपॉन द फ्यूचर कंडक्ट, गुड कंडक्ट फॉर द पेंशनर टू गेट पेंशन इन सब्सिक्वेंट टाइम. First one, 1A, future good conduct shall be an implied condition of every grant of pension and its continuance under these rules. So इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन मिल गया जो अंडरलाइन क्या है, फ्यूचर गुड कंडक्ट. So if the pensioner involved in any type of misconduct, and for this if disciplinary proceeding would be initiated, then definitely the appointing authority has power to withdraw or withhold part of the pension occasionally, a temporary period of time or permanently. तो इसके आगे में हम डिस्कस करेंगे. The appointing authority may by order in writing withhold or withdraw a pension or a part thereof, whether permanently or for a specified period, if the pensioner is convicted of a serious crime or is found guilty of grave misconduct. तो ये जो अंडरलाइन किया है, if the pensioner is convicted of a serious crime or is found guilty of grave misconduct, then appointing authority has power to withhold or withdraw a pension or a part of it for permanently or for a specified period, provided that whether a part of the pension is withheld or withdrawn, the amount of such pension shall not be reduced below the amount of minimum pension under Rule 44. It means rupees 9,000 per month. यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको. यदि पार्ट ऑफ द पेंशन को विथहेल्ड किया जाता है कि विथड्रॉन किया जाता है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ पेंशन वो 9,000 से कम नहीं होगा, क्योंकि 7th पे कमीशन में मिनिमम पेंशन 9,000 होना चाहिए. ये रूल 44 में है. पहले जो CCS पेंशन रूल्स 1972 में रूल 49 में था, अभी ये अमेंडमेंट के बाद वो रूल 44 में क्लियरली मेंशन है कि जो मिनिमम पेंशन होगा वो रुपीज़ 9,000 से कम नहीं होगा. यदि पार्ट ऑफ द पेंशन को विथहेल्ड किया जाता है कि विथड्रॉन किया जाता है, देन अमाउंट ऑफ पेंशन, द अमाउंट ऑफ मिनिमम पेंशन शुड नॉट बिलो रुपीज़ 9,000 रुपीज़ पर मंथ. ऑलरेडी इट इज मेंशनड इन रूल 44. Second one, if a pensioner is convicted of a serious crime by court of law, action shall be taken in the light of the judgment of the court relating to such conviction. और एक अंडरलाइन में कर चुका हूँ. यदि पेंशनर कन्विक्टेड होता है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, तो जो कोर्ट का जजमेंट होता है रिलेटेड टू द जजमेंट ऑफ द कोर्ट,
तो उसके हिसाब से जो डिसीजन लिया जाएगा कि पार्ट ऑफ द पेंशन और पेंशन को विथड्रॉ किया जाएगा कि विथहेल्ड किया जाएगा, कितना पार्ट ऑफ द पेंशन को विथड्रॉ किया जाएगा कि विथहेल्ड किया जाएगा, और ये टेम्पररी पीरियड के लिए होगा कि फॉर स्पेसिफिक पीरियड होगा, तो ये मेंशन होता है, मगर इट इज़ मेनली डिपेंड अपॉन द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, राइट। तो इसके ऊपर आपके क्वेश्चन मिलेगा, इफ द पेंशनर इज कन्विक्टेड ऑफ ए सीरियस क्राइम बाय कोर्ट ऑफ लॉ, action should be taken in the light of the judgment of the court relating to such conviction. Third one, in other cases, if the appointing authority feels that the pensioner is guilty of grave misconduct, a so cause notice should be issued to the pensioner for submitting his representation within 15 days extended by another 15 days. यदि appointing authority feel करता है कि the pensioner ऑलरेडी इन्वॉल्व इन ग्रेव मिसकंडक्ट, तो वो सो कज नोटिस वो कंसर्न पेंशनर को देता है, और वो कंसर्न पेंशनर जिस डेट में उसको नोटिस मिलेगा, सो कज नोटिस, उसका 15 डेज के अंदर उसको रिप्रेजेंटेशन देना है, और जो 15 डेज है वो भी और एक्सटेंड होगा, और 15 डेज एक्सटेंड होगा, इट मीन्स मैक्सिमम 30 डेज। फर्स्ट 15 डेज if the concerned pensioner is unable to give the representation, then another 15 days he will get. तो यहाँ पर है, यदि अपॉइंटिंग अथॉरिटी फील करता है कि हाँ द पेंशनर एक्चुअली इन्वॉल्व इन मिसकंडक्ट, देन सो कज नोटिस issued to the concerned pensioner, and the pensioner should give representation within 15 days after accepting the order, or also it can be extended by another 15 days. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, तो आप अंडरलाइन पर्सन को देख लीजिए। द फाइनल ऑर्डर शैल बी पास्ड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द पेंशनर। पेंशनर का रिप्रेजेंटेशन मिलने के बाद तब उसके ऊपर फाइनल ऑर्डर लिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे, फोर्थ वन, वेयर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज द प्रेसिडेंट। यदि अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट होते हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, the UPSC shall be, Union Public Service Commission shall be consulted before the order is passed. हम जानते हैं कि यदि पेंशनर ग्रेव मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व होता है और कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड होता है, तब अपॉइंटिंग अथॉरिटी का पावर है, वो पार्ट ऑफ द पेंशन को विथहेल्ड कर सकता है और विथड्रॉन कर सकता है फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यदि अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट होते हैं, देन the UPSC should be consulted before the order is passed by the honorable president. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, बेसिकली ग्रुप ए ऑफिसर्स का जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट का ऑर्डर आने से पहले द ऑनरेबल प्रेसिडेंट मस्ट कंसल्ट विद द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, देन पास द ऑर्डर। फिफ्थ वन, an appeal against an order passed by any authority other than the president shall be to the president. Orders on the appeal should be passed by the president in consultation with the UPSC. यदि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कोई ऑर्डर देता है कि पार्ट ऑफ द पेंशन को विथहेल्ड किया जाएगा, कि पार्ट ऑफ द पेंशन को विथड्रॉन किया जाएगा फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके अगेंस्ट में अपील किया जाएगा। अपील किया जाएगा तो अपील किसको किया जाएगा? ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, ठीक है। यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट के अलावा और कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं, तो जो ग्रुप बी ऑफिसर्स है, ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो ग्रुप बी के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी अलग होते हैं। जब अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑर्डर दे देते हैं, तब उस केस में जो कंसर्न पेंशनर अपील टू द प्रेसिडेंट, तो वहां पर अपील किया जाएगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट को। तब ऑनरेबल प्रेसिडेंट देन कंसल्ट विद द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बिफोर पासिंग द ऑर्डर। उसमें रूल 6A में, नो गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैविंग वर्कड इन एन इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 22 of 2005 shall, without
prior clearance from the head of the organization make any publication after retirement of any material relating to and including। तो ये जो है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट वो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, जो सेकेंड शेड्यूल है, जो द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई एक्ट 2005 में क्लियरली मेंशन है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट they were working in intelligence or security related organization, then after retirement बिना परमिशन से, विदाउट क्लियरेंस फ्रॉम द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो कुछ भी पब्लिकेशन नहीं कर सकते। तो किसके ऊपर? जैसे डोमेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई पब्लिकेशन नहीं कर सकते बिना परमिशन से, इंक्लूडिंग एनी रिफरेंस और इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सनल एंड हिज डेजिग्नेशन and expertise or knowledge gained by virtue of working in that organization। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, अभी रिटायरमेंट के बाद वो बिना परमिशन से कोई पब्लिकेशन नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सनल एंड हिज डेजिग्नेशन, कि जो भी एक्सपर्टाइज और नॉलेज वो गेन किया है उसके ऊपर कोई पब्लिकेशन नहीं हो सकता। एंड अदर कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है, उसको वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे बिना परमिशन से। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड प्रेजुडिशियली अफेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट और रिलेशन विथ ए फॉरेन स्टेट, और विच वुड लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। तो कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको वो पब्लिश नहीं किया जा सकता। एंड ये पब्लिकेशन होने से क्या है, हमारा सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए खतरा होता है, वो पब्लिकेशन नहीं हो सकता। सिमिलरली 6B में आएंगे, द गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु हैव वर्कड इन एनी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल टू द आरटीआई एक्ट 2005, जो पारा 22 ऑफ 2005 में मेंशन है, शाल गिव एन अंडरटेकिंग in regard to the above restriction in format 1, and any failure to the observe such an undertaking on the part of retired government servant shall be treated as grave misconduct under this rule। तो जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट काम कर रहे हैं इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में, उनको अंडरटेकिंग देना पड़ता है। अंडरटेकिंग जो फॉर्मेट 1 में वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो बिना परमिशन से कोई भी पब्लिकेशन नहीं कर सकते। तो ये जो अंडरटेकिंग देंगे वो सर्विस में देंगे। तो रिटायरमेंट के बाद यदि वो उसको ब्रीच करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ग्रेव मिसकंडक्ट माना जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। तो एक्शन क्या होगा? जैसे पार्ट ऑफ द पेंशन को विथहेल्ड कर सकते हैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी, और पार्ट ऑफ द पेंशन को विथड्रॉ किया जा सकता है। नेक्स्ट 6C में, इन द केस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफर्ड आउट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन on completion of deputation or otherwise, the required undertaking in duplicate shall be obtained from the government servant at the time of transfer, and one copy of the undertaking shall be kept in the service book of the government servant, and an entry to this effect shall be made in the service book, and the other copy of the undertaking shall be kept in the aforesaid organization for record। तो 6C में क्लियरली मेंशन है, यदि गवर्नमेंट सर्वेंट सपोज डेपुटेशन में गया था कोई इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड डिपार्टमेंट को, उसका डेपुटेशन पीरियड खत्म हो गया, तब इस केस में वो जो बोरोइंग डिपार्टमेंट में वो एक अंडरटेकिंग देगा और वो अंडरटेकिंग उसका सर्विस बुक में रहेगा। और सिमिलरली जो उसका पेरेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी अंडरटेकिंग दिया जाएगा और वो भी उसका सर्विस बुक में रहेगा। तो दोनों में, लेंडिंग एंड बोरोइंग डिपार्टमेंट में उसका अंडरटेकिंग रहेगा कि मेरा रिटायरमेंट के बाद मैं ऐसा कुछ पब्लिकेशन नहीं करूंगा जो इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया एंड सोवरेनिटी कैन बी एडवर्सली अफेक्टेड। क्लियर? ये बिट 6C में है। आगे में चलेंगे। 7th one, द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शाल वेस्ट विद द अथॉरिटी टू डिसाइड एज टू वेदर द प्रपोज्ड मटेरियल फॉर पब्लिकेशन इज सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव and whether it falls in the domain of the organization। तो यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद जो गवर्नमेंट सर्वेंट काम कर रहे थे इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड डिपार्टमेंट में,
वो ऐसा कुछ पब्लिकेशन करना चाहते हैं तो वो पहले फर्स्ट कंसल्ट लेंगे, वो परमिशन लेंगे डिपार्टमेंट से। जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका पावर है, वो देखेंगे कि जो पब्लिकेशन होगा वो सेंसिटिव है कि नॉन सेंसिटिव है, क्या वो डोमेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो उसके हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं कि परमिशन दिया जाएगा कि नहीं। तो यहां पर एक क्वेश्चन मिल गया। बेसिकली द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन shall vest with the authority. The head of the organization is the authority to take decision and first check whether the publication material is sensitive or non-sensitive, whether permission would be given or not. 8 में where the authority competent to pass an order is the president, the Union Public Service Commission shall be consulted before any order is passed. यदि competent authority president ऑनरेबल प्रेसिडेंट होते हैं तब डेफिनेटली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ कंसल्ट होगा, फिर ऑर्डर पास किया जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिल सकता है, राइट। जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, तो वो पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ कंसल्ट करके फिर ऑर्डर पास करते हैं, राइट। ये रूल 7 में हो गया। अभी रूल 8 में देखेंगे, जो रूल 8 CCS पेंशन रूल्स 1972, रूल 8 CCS pension rules 2021. The departmental proceedings instituted against a government servant during service and pending at the time of retirement. इस रूल में देखेंगे कि ऑलरेडी सर्विस में ऑलरेडी द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हैज इनिशिएटेड एंड एट द सेम टाइम द कंसर्न पर्सन इज रिटायर्ड। ओके, उसके बाद वो जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा था वो उसके ऊपर क्या कार्रवाई किया जाएगा। चलो अभी देखेंगे। फर्स्ट वन, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स पेंडिंग एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ री एम्प्लॉयमेंट आर डीम्ड टू बी द प्रोसीडिंग्स अंडर रूल 8 एंड शैल बी कंटिन्यूड एंड कंक्लूडेड बाय द सेम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एंड इन द सेम मैनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि बिफोर रिटायरमेंट ऑलरेडी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हैज इनिशिएटेड एंड एट द सेम टाइम द पर्सन इज रिटायर्ड, then after retirement the same disciplinary authority will continue the proceeding. आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, वही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करेगा आफ्टर रिटायरमेंट। तो इस केस में देयर आफ्टर अथॉरिटी विल सबमिट ए रिपोर्ट रिकॉर्डिंग इट्स फाइंडिंग टू द प्रेसिडेंट। रिटायरमेंट के पहले डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा था, अभी कंसर्न एम्प्लॉय का रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड होने के बाद सेम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करेगा, मगर रिपोर्ट किसको जाएगा आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग? द रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। रिपोर्ट वहां पर सबमिट किया जाएगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट को। क्लियर? नेक्स्ट वन, पेंशन, प्रोविजनल पेंशन मिलेगा, मगर यहां पर आपको याद रखना है यदि मेजर पेनल्टी के ऊपर प्रोसीडिंग होता है। मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग आपको याद होगा कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1965, जब मेजर पेनल्टी का प्रोसीडिंग चल रहा है तब प्रोविजनल पेंशन मिलेगा। माइनर पेनल्टी में, जो माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स होता है उसका कोई पेंशन के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, आपको याद रखना है। ओनली मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग में प्रोविजनल पेंशन मिलेगा, और अदर साइड में जो ग्रेच्युइटी है उसको विथहेल्ड कर दिया जाएगा, ग्रेच्युइटी नहीं दिया जाएगा टिल द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग। तो यहां पर आ गया ओनली प्रोविजनल पेंशन इज पेड एज पर रूल 63। प्रोविजनल पेंशन ये जो रूल 63 है, पहले जो CCS पेंशन रूल्स 1972 था वो रूल 69 था, मगर अभी रूल 63 हो गया, आपको याद रखना है। रूल के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ओनली प्रोविजनल पेंशन इज पेड एज पर रूल 63 ऑफ CCS पेंशन रूल्स 1972, मगर यहां पर आपको याद रखना है मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स अंडर रूल 14 ऑफ CCS CCA रूल्स 1965। जो मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स होता है वो रूल 14 है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1965। यदि माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स है वो उसका पेंशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, और जो माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स वो है रूल 16 ऑफ CCS CCA रूल्स 1965। तो जब मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग चल रहा है तब प्रोविजनल पेंशन मिलेगा और ग्रेच्युइटी को विथहेल्ड कर दिया जाएगा टिल द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है।
चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स अभी मैं बताया, यदि माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग चल रहा है अगेंस्ट द कंसर्न एम्प्लॉय, ठीक है, वो पेंशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड अंडर रूल 16 ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1965। तो माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स चल रहा है, कंसर्न एम्प्लॉय रिटायर्ड हो जाता है, उसके बाद सेम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करता है, मगर जो प्रोसीडिंग्स है वो माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स है, वहां पर पेंशन के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा और ग्रेचुइटी एज यूजुअल मिलेगा। तो ये जो माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स चलता है वो रूल 16 सीसीए रूल्स 1965 के हिसाब से चलता है, तो उसमें पेंशन के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा कि ग्रेचुइटी को विथहेल्ड नहीं किया जाएगा। shall have no effect on the pension and gratuity of the pensioner। आपको याद रखना है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट वन, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स बी इंस्टीट्यूटेड आफ्टर रिटायरमेंट। सर्विस में बिफोर रिटायरमेंट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंसर्न एम्प्लॉय स्टार्ट नहीं हुआ है, मगर रिटायरमेंट के बाद डिटेक्ट होता है कि जो कंसर्न पेंशनर है वो सर्विस टाइम में कुछ मिसकंडक्ट किया है, आफ्टर रिटायरमेंट वो डिटेक्ट होता है, तो उसके ऊपर हम देखेंगे। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स बी इंस्टीट्यूटेड आफ्टर रिटायरमेंट, ये भी रूल 8 में आता है। यदि रिटायरमेंट के बाद ये डिटेक्ट होता है कि सर्विस में जो कंसर्न पेंशनर है वो सर्विस में कुछ मिसकंडक्ट किया है, कुछ करप्शन में इन्वॉल्व है, कुछ ऑफिशियल पोजीशंस में रूल्स को ब्रीचिंग किया है, तो इस केस में तो रिटायरमेंट के बाद वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा। मगर आपको याद रखना है, यदि मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा तब ऑनरेबल प्रेसिडेंट का परमिशन लेना चाहिए। विदाउट परमिशन ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट द मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग शुड नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द कंसर्न पेंशनर। ये जो बात है रिटायरमेंट के बाद डिटेक्ट होता है कि कंसर्न पेंशनर उसका सर्विस पीरियड में कुछ मिसकंडक्ट किया है और यहां पर मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग होगा, तब ऑनरेबल प्रेसिडेंट का परमिशन चाहिए। यदि माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग है वो जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग में वो पेंशन के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होता है। ओनली मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू द रूल 14 ऑफ सीसीए रूल्स 1965। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सैंक्शन ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट इज नेसेसरी इन केस ऑफ मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द पेंशनर आफ्टर रिटायरमेंट if it is detected that the pensioner did misconduct during his service। The proceedings shall not be in respect of any event which took place more than 4 years before such institution। जिस डेट में डिसाइड होता है कि मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स की डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होगा, हमको देखना पड़ेगा कि ये जो इवेंट के ऊपर जो ये प्रोसीडिंग होने वाला है वो इट मीन्स इट टुक प्लेस हाउ मेनी ईयर्स बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग। तो आपको यहां पर याद रखना है कि द इवेंट टुक प्लेस विद इन 4 years बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग। जिस डेट में प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट होगा तो उस डेट से आप देख लीजिए कि द इवेंट टुक प्लेस विद इन 4 years। यदि 4 years से ज्यादा है तब कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं होगा। तो वही है, द प्रोसीडिंग्स शैल बी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इवेंट विच टुक प्लेस मोर देन 4 years बिफोर सच इंस्टीट्यूशन। तो यहां पर अभी जो हम डिस्कशन चल रहा है कि हम डिटेक्ट कर रहे हैं कि पेंशनर उसका सर्विस पीरियड में कुछ मिसकंडक्ट किया है, मगर जिस डेट में हमारा प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट होगा उसमें हमको देखना चाहिए कि वो इवेंट्स जो बेसिकली टुक प्लेस इन द पास्ट विद इन हाउ मेनी ईयर्स बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग। इफ द इवेंट टुक प्लेस विद इन 4 years बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग तब प्रोसीडिंग इनिशिएट किया जाएगा। यदि मोर देन 4 years है तब कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होगा।
next proceedings shall be conducted by such authority and in such place, or the president may direct and in accordance with rules applicable to departmental proceedings in which an order of dismissal from service could be made in relation to the government servant during his service. तो यहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स मैं बता चुका हूँ, यदि प्रोसीडिंग्स होगा मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स, तब ऑनरेबल प्रेसिडेंट का परमिशन लेना चाहिए. बिना परमिशन से डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुड नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द पेंशनर. तो इस केस में एक्चुअली ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि कौन, इट मीन्स व्हिच अथॉरिटी और इन व्हिच प्लेस it is the direction given by the president. Okay, which authority actually initiate the disciplinary proceeding and in which place. So ये सब direction honorable president ही देंगे, right? In which an order of dismissal from service could be made in relation to the government servant during his service. तो ये actually honorable president का power है, वो decide करेंगे. Okay, basically the authority who actually initiate the disciplinary proceeding and in which place. Where full-fledged inquiry is conducted, जैसे full-fledged inquiry होगा under the CCA rules 1965, where the full-fledged inquiry is conducted, giving an opportunity to the pensioner to show cause notice during the proceedings. जो show cause notice दिया जाएगा, हम जानते हैं show cause notice दिया जाएगा और पेंशनर जवाब देगा उसको 15 डेज में, और वो फर्स्ट 15 डेज में जवाब नहीं दे सकता है तो और 15 डेज उसको मिलेगा, राइट. तो ये पूरा सीसीए रूल्स के हिसाब से फुल फ्लेज्ड इंक्वायरी कंडक्ट होगा. नेक्स्ट वन, द फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑफिसर इज टू रीच हिज फाइंडिंग्स एंड देन सबमिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट विल कंसल्ट द यूपीएससी बिफोर फाइनल ऑर्डर्स. तब जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो उसका रिपोर्ट को आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग द इंक्वायरी ऑफिसर सबमिट रिपोर्ट टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट. देन ऑनरेबल प्रेसिडेंट कंसल्ट विद द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बिफोर पासिंग एन ऑर्डर, राइट. तो ये चीज को आपको ध्यान देना है. अभी चलेंगे कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू विथ होल्ड और विथ ड्रॉ पेंशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. ये रूल 8 को याद रखना है. तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट का पावर है वो पार्ट ऑफ द पेंशन और फुल पेंशन को विथ होल्ड कर सकते हैं और विथ ड्रॉ कर सकते हैं. अभी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. The president reserves to himself the right of withholding a pension or gratuity or both, either in full or in part, or withdrawing a pension in full or in part, whether permanently or for a specified period, and of ordering recovery from a pension or gratuity of the whole or part of any pecuniary loss caused to the government if any departmental or judicial proceedings the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence during the period of service, including service rendered upon re-employment after retirement. तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट का पावर है आफ्टर कंसल्ट विद द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑनरेबल प्रेसिडेंट पास एन ऑर्डर. यदि द पेंशनर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन ग्रेव मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस और मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम आफ्टर रिटायरमेंट, तब अल्टीमेटली आफ्टर कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग द इंक्वायरी ऑफिसर सबमिट रिपोर्ट टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट. देन प्रेसिडेंट कंसल्ट विद द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बिफोर पासिंग एन ऑर्डर. और ये ऑर्डर हो सकता है कि पार्ट बेसिकली राइट विथ होल्डिंग ए पेंशन और ग्रेचुइटी और बोथ, दोनों को पेंशन और ग्रेचुइटी को विथहोल्ड कर सकते हैं आइदर इन फुल और इन पार्ट, विथड्रॉइंग ए पेंशन इन फुल और इन पार्ट, परमानेंटली और फॉर स्पेसिफिक पीरियड. और यदि गवर्नमेंट को लॉस हुआ है, कुछ पेकुनियरी लॉस है, तब उसको रिकवरी उससे किया जाएगा. तो ये जो सब डिसीजन है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ही लेंगे, उनका राइट है, राइट. कितना पेंशन का कितना पार्ट विथड्रॉ किया जाएगा, कि कितना पार्ट विथहोल्ड किया जाएगा, कि ग्रेचुइटी का कितना पार्ट विथड्रॉ किया जाएगा कि विथहोल्ड किया जाएगा, और कितना समय के लिए, परमानेंट के लिए कि टेम्पररी पीरियड के लिए. यदि गवर्नमेंट को लॉस हुआ है, ऐसा कुछ ग्रेव मिसकंडक्ट किया है एम्प्लॉय, तो उसमें गवर्नमेंट को लॉस हुआ है, तब जो पेकुनियरी लॉस को रिकवर किया जाएगा, इसके ऊपर भी ऑर्डर दे सकते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट. ठीक है, तो ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट का पावर है, राइट.
प्रोवाइडेड दैट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी कंसल्टेड बिफोर एनी फाइनल ऑर्डर्स आर पास्ड। हम जानते हैं कि बिफोर पासिंग एनी फाइनल ऑर्डर बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, देन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन शुड बी कंसल्टेड, राइट। Next, provided further that where a part of the pension is withheld or withdrawn, the amount of such pension shall not be reduced below the amount of minimum pension under Rule 44 rupees 9,000। यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग विथ यूपीएससी ये डिसीजन लेते हैं कि पार्ट ऑफ द पेंशन को विथहेल्ड किया जाएगा कि विथड्रॉन किया जाएगा, मगर जो मिनिमम पेंशन होगा वो 9,000 से कम नहीं होगा। मैं बता चुका हूं, ये रूल 44 सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 में मेंशन है। तो मिनिमम पेंशन 9,000 होगा। पार्ट ऑफ द पेंशन को विथहेल्ड किया जा सकता है कि विथड्रॉन किया जा सकता है, मगर मिनिमम पेंशन शुड नॉट बी बिलो ₹9,000। ये अंडर रूल 44 में मेंशन है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। चलो, रूल 8, प्रोविजनल पेंशन ऑन डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड अंडर रूल 14 ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965। ये थोड़ा मैं बता रहा हूं कि ऑलरेडी बिफोर रिटायरमेंट ऑलरेडी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हैज इनिशिएटेड अगेंस्ट द एम्प्लॉय एंड इन द मिडिल एम्प्लॉय इज रिटायर्ड। ऑलरेडी रिटायरमेंट के पहले डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हो चुका है और उस समय कंसर्न एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हो जाता है और उसके बाद डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगा और सेम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो इस केस में प्रोविजनल पेंशन मिलता है। मगर आपको याद रखना है, यदि मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स होता है, मैं पहले बता चुका हूं, मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स अंडर रूल 14 ऑफ सीसीए रूल्स 1965 में मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स चल रहा है, तब प्रोविजनल पेंशन मिलेगा और ग्रेचुइटी को विथहेल्ड कर दिया जाएगा टिल द कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग। तो ये प्रोविजनल पेंशन कैसे फिक्स होता है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अभी। इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज रिटायर्ड ऑन अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन और अदरवाइज एंड अगेंस्ट whom एनी डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड और where डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड अंडर रूल 14 ऑफ द सीसीए रूल्स 1965 आर कंटिन्यूड, ये प्रोविजनल पेंशन आज प्रोवाइडेड। मैं बता चुका हूं, यदि मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू होगा, चल रहा था, कंसर्न एम्प्लॉय का रिटायर्ड हो गया, सुपरएनुएशन में रिटायर्ड हो गया, उसके बाद तो प्रोसीडिंग कंटिन्यू करेगा और उस केस में प्रोविजनल पेंशन मिलेगा यदि मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स, क्योंकि माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स चलता है तो वो पेंशन के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा और एज यूजुअल वो ग्रेचुइटी मिलेगा। मगर इस केस में प्रोविजनल पेंशन मिलेगा और ग्रेचुइटी को विथहेल्ड कर दिया जाएगा टिल द कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग। चलो, कैसे फिक्स होगा प्रोविजनल पेंशन उसके ऊपर देखेंगे। द अकाउंट्स ऑफिसर shall authorize the provisional pension equal to the maximum pension which would have been admissible on the basis of qualifying service up to the date of retirement of the government servant। जो अकाउंट्स ऑफिसर है उनका ऑथराइजेशन है, वो प्रोविजनल पेंशन को फिक्स करेंगे क्वालिफाइंग सर्विस को देखकर अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, बेसिकली हम जानते हैं कि क्वालिफाइंग सर्विस को देखकर ही पेंशन फिक्स होता है। तो ये अकाउंट्स ऑफिसर का ऑथराइजेशन है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अकाउंट्स ऑफिसर टू चेक द क्वालिफाइंग सर्विस and up to the retirement then fix the provisional pension। if he was under suspension on the date of retirement, यदि रिटायरमेंट के टाइम में यदि कंसर्न एम्प्लॉय ऑलरेडी सस्पेंडेड है, तो जिस डेट में उसका रिटायरमेंट होता है वो डेट को भी हम जानते हैं कि उसको सस्पेंशन डेट ही माना जाएगा। तो यदि वो सस्पेंडेड है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तब उसका जो क्वालिफाइंग सर्विस, क्योंकि सस्पेंशन पीरियड क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होता है, जस्ट प्रेसिडिंग ऑफ द सस्पेंशन पीरियड, ओके, तब तक क्वालिफाइंग सर्विस को डिटेक्ट किया जाएगा। जो सस्पेंशन पीरियड है वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि सस्पेंशन पीरियड क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होता है। तो उसके हिसाब से फिर अकाउंटिंग ऑफिसर, जो अकाउंट्स ऑफिसर है, वो
प्रोविजनल पेंशन को फिक्स करेंगे अप टू द डेट इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट ऑन व्हिच ही वाज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। तो हमको यहां पर याद रखना है कि सस्पेंशन पीरियड को क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जस्ट प्रेसिडिंग ऑफ द सस्पेंशन पीरियड, तब तक क्वालिफाइंग सर्विस को डिटेक्ट किया जाएगा। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अकाउंट्स ऑफिसर टू चेक द क्वालिफाइंग सर्विस जस्ट प्रेसिडिंग द date of suspension and fix the provisional pension. The provisional pension shall be authorized by the accounts officer during the period commencing from the date following the date of retirement up to and including the date on which after the conclusion of departmental or judicial proceedings final orders are passed by the competent authority. तो यहाँ पर जो प्रोविजनल पेंशन मिलेगा, जिस डेट में रिटायरमेंट हो जाता है नेक्स्ट डे से प्रोविजनल पेंशन स्टार्ट हो जाता है, और जिस डेट में, तो प्रोविजनल पेंशन कब तक मिलेगा, जिस डेट में ऑर्डर पास होता है, बेसिकली डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो जाता है और ऑर्डर पास होता है जिस डेट में, वो जो जिस डेट में ऑर्डर पास होगा वो भी इंक्लूड होगा, तब तक प्रोविजनल पेंशन मिलेगा। वही दिया है, जस्ट नेक्स्ट डे ऑफ रिटायरमेंट से शुरू हो जाता है और अप टू द बेसिकली कंक्लूजन ऑफ departmental or judicial proceedings and also the date on which the order passed, वो भी इंक्लूड होगा, तो तब तक वो प्रोविजनल पेंशन मिलता रहेगा। तो आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन मिल सकता है। इट इज कमेंसिंग फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट अप टू and including the date on which after the conclusion of departmental or judicial proceedings final orders are passed by the competent authority. No gratuity shall be paid to the government servant until the conclusion of the departmental or judicial proceedings and issue of final orders thereon. मैं इसको बोल चुका हूँ, ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा till the conclusion of the departmental और judicial proceedings. तो यहाँ पर जो प्रोविजनल पेंशन कब तक मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ओके, तो बेसिकली आपको याद रखना है, बेसिकली इट प्रोविजनल पेंशन कमेंस फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द रिटायरमेंट एंड it will continue up to the date on which final order passed. So जिस डेट में फाइनल ऑर्डर पास होगा वो भी इंक्लूड होगा, तब तक प्रोविजनल पेंशन मिलेगा। पेमेंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन मेड shall be adjusted against final retirement benefits sanctioned to such government servant upon conclusion of such proceedings, but no recovery shall be made where the pension finally sanctioned is less than the provisional pension or the pension is reduced और withheld either permanently or for a specified period। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की जुडिशियल प्रोसीडिंग कंक्लूड होने के बाद पेंशन फिक्स होगा। यदि जो पेंशन फिक्स हुआ वो प्रोविजनल पेंशन से कम होता है, फिक्सेशन ऑफ पेंशन इफ इट इज लेस देन द प्रोविजनल पेंशन, कि हम जानते हैं कि सपोज पार्ट ऑफ द पेंशन को विथड्रॉन किया जा सकता है और विथहेल्ड भी किया जा सकता है। तो इस केस में जो भी पेंशन फिक्स होगा, यदि वो प्रोविजनल पेंशन से कम होता है तो वो रिकवरी नहीं होगा, क्योंकि प्रोविजनल पेंशन मिल रहा है। अभी कंक्लूड होने के बाद, बेसिकली डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का कंक्लूडिंग होने के बाद जो पेंशन फिक्स हुआ वो प्रोविजनल पेंशन से सपोज कम है, तो उस केस में जो ज्यादा प्रोविजनल पेंशन मिला है वो रिकवरी नहीं किया जाएगा, राइट। वेयर द प्रेसिडेंट डिसाइड्स नॉट टू withhold or withdraw pension but orders recovery of pecuniary loss from pension, the recovery shall not ordinarily be made at a rate exceeding 1/3 of the pension admissible on the date of retirement of a government servant। यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ये डिसाइड करते हैं कि पेंशन को विथहोल्ड नहीं किया जाएगा, विथड्रॉ नहीं किया जाएगा, मगर वहां पर एक ऑर्डर पास होता है कि गवर्नमेंट को जो पेकुनियरी लॉस हुआ है तो वो रिकवरी होगा, मगर वो जो रिकवरी होगा पेंशन का मैक्सिमम 1/3 रिकवरी होगा। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा, यदि पेकुनियरी लॉस रिकवरी होगा पेंशन से तो वो मैक्सिमम 1/3, जो एवरी मंथ में 1/3 ही रिकवरी होगा। द रिकवरी शैल नॉट ऑर्डिनरली बी मेड एट ए रेट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द पेंशन एडमिसिबल ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। यदि रिकवरी होता है पेकुनियरी लॉस, वो एवरी मंथ पेंशन से 1/3 से ज्यादा रिकवरी नहीं होगा। रूल 8 रिव्यू एंड रिवाइज द ऑर्डर बाय द प्रेसिडेंट। अभी देखेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट यदि रिव्यू करते हैं कि रिवाइज करते हैं उनका ऑर्डर को। द प्रेसिडेंट मे एट एनी टाइम
either on his own motion or otherwise call for the records of any inquiry and revise any order made under these rules after consultation with the Union Public Service Commission and may confirm, modify or set aside the order or remit the case to any authority directing such authority to make such further inquiry as it may consider proper in the circumstances of the case or pass such other order as he may deem fit। तो यहाँ पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट का पावर है, वो जो ऑर्डर दिया है उसको रिव्यू कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं और ऑर्डर को सेट असाइड कर सकते हैं, और वो भी है और कोई अथॉरिटी को भी दे सकते हैं कि और एक बार इंक्वायरी हो जाए, तो ये कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो सेकेंड पैराग्राफ है देखिए, प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर एनहांसिंग द अमाउंट ऑफ पेंशन और ग्रेचुइटी टू बी विथहेल्ड और विथड्रॉन shall be made by the president unless the government servant concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the order proposed and except after consultation with the Union Public Service Commission। यहाँ पर क्या है, यदि फास्ट ऑर्डर में ऑलरेडी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ये ऑर्डर दे चुके हैं कि इतना पार्ट ऑफ द पेंशन को विथहेल्ड किया जाएगा, कि इतना पार्ट ऑफ द पेंशन को विथड्रॉ किया जाएगा, कि इतना ग्रेचुइटी को, इतना पोर्शन ऑफ ग्रेचुइटी को विथहेल्ड किया जाएगा, कि इतना पोर्शन ग्रेचुइटी को विथड्रॉन किया जाएगा। तो रिवाइज होने के बाद वो जो ऑर्डर में पहले था, जो पहला ऑर्डर में वो बोले थे कि परसेंटेज ऑफ पेंशन और ग्रेचुइटी विथड्रॉन और विथहेल्ड, वो एनहांस नहीं हो सकता, वो बढ़ नहीं सकता। यदि वो बढ़ेगा तब वो पहले रिप्रेजेंटेशन देगा द कंसर्न पेंशनर। बिना रिप्रेजेंटेशन से ऑनरेबल प्रेसिडेंट उसको बढ़ा नहीं सकते। इफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट आफ्टर रिविजन एंड आफ्टर रिव्यू डिटेक्टेड दैट इज द पार्ट ऑफ द पेंशन और पार्ट ऑफ द ग्रेचुइटी विथड्रॉन, इट मस्ट बी एनहांस्ड, इट मस्ट बी इंक्रीज्ड। जितना अमाउंट पेंशन और ग्रेचुइटी को विथड्रॉन किया गया है उसको और ज़्यादा प्रपोर्शन में उसको और ज़्यादा एनहांस होकर उसको ज़्यादा प्रपोर्शन में उसको विथहेल्ड कर दिया जाएगा और विथड्रॉन किया जाएगा। तो जब एनहांस का बात आता है तो उस केस में पहले जो कंसर्न पेंशनर है वो उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, कि क्यों आपका जो पार्ट ऑफ द पेंशन और पार्ट ऑफ द ग्रेचुइटी जो विथहेल्ड विथड्रॉन किया गया है उसको एनहांस क्यों नहीं किया जाएगा। मगर उसके पहले नहीं होगा, तो रिप्रेजेंटेशन, इट मीन्स आस्किंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द पेंशनर। ओके, इफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट आफ्टर रिवीजन एंड आफ्टर रिव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर रिवीजन एंड रिव्यू, इफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैज डिटेक्टेड दैट इज पार्ट ऑफ द पेंशन और ग्रेचुइटी withdrawn or withheld can be enhanced, can be increased, then before passing the order the opportunity should be given to the pensioner to give representation against the proposed act, right? रिप्रेजेंटेशन देने के बाद उसके ऊपर फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिसीजन लेते हैं। मगर ये जो है, यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और कुछ नहीं, डिसीजन फाइनल ऑर्डर दे दिया जाएगा, एंड एक्सेप्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन पेंशनर देगा कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, हाँ जो पार्ट ऑफ द पेंशन को विथड्रॉन किया गया था, कि पार्ट ऑफ द पेंशन को विथहेल्ड किया गया था, कि पार्ट ऑफ द ग्रेचुइटी को विथड्रॉन किया गया था और विथहेल्ड किया गया था, उसको थोड़ा एनहांस करना चाहिए, उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तो पहले वो रिप्रेजेंटेशन लेंगे पेंशनर से, फिर वो उसका रिप्रेजेंटेशन को एनालाइज करके ऑर्डर लेंगे और फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ बात करने के बाद फाइनल ऑर्डर फिर पास होगा। मगर एक बार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ कंसल्ट करने के बाद जो ऑर्डर पास हुआ, तब उसके अगेंस्ट में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकता पेंशनर, राइट? चलो नेक्स्ट पार्ट। द प्रेसिडेंट मे एट एनी टाइम आइदर ऑन हिज ओन मोशन और अदरवाइज रिव्यू एनी ऑर्डर पास्ड अंडर दीज रूल्स where extenuating or special circumstances exist to warrant such review, or when any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the order under review, and which has the effect of changing the nature of the case has come or has been brought to his notice,
यहाँ पर क्या है, यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट उसको रिव्यू करते हैं और और उनको रिव्यू टाइम में और कोई न्यू मटेरियल्स नहीं मिला और न्यू एविडेंस नहीं मिला, ठीक है, और उसमें कुछ वो मॉडिफाई करना चाहते हैं, पहले जो ऑर्डर दिए थे उसमें मॉडिफाई यदि वो करना चाहते हैं, तो उस केस में भी वही जो पहले मैं बताया वही है। तो वो पार्ट ऑफ द पेंशन और पार्ट ऑफ द ग्रेचुइटी को जो विथहेल्ड किया है और विथड्रॉन किया है, यदि वो चाहते हैं कि वो एनहांस होगा, वो बढ़ेगा, जितना प्रॉपर्शन ऑफ पेंशन और ग्रेचुइटी को विथहेल्ड और विथड्रॉन किया गया है उसको थोड़ा बढ़ाया दिया जाएगा, मगर पहले वो रिप्रेजेंटेशन लेंगे पेंशनर से, राइट, देन कंसल्टिंग विद द यूपीएससी एंड देन अल्टीमेटली फाइनल ऑर्डर वुड बी पास्ड। मगर वो इस केस में यदि वो चाहते हैं कि जो प्रॉपर्शन ऑफ पेंशन और ग्रेचुइटी जो विथहेल्ड और विथड्रॉन किया गया है जो पहला ऑर्डर में, उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि रिव्यू के बाद तब वो रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। विदाउट रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली डायरेक्टली द ऑनरेबल प्रेसिडेंट कैन नॉट एनहांस द पार्ट ऑफ द पेंशन और पार्ट ऑफ द ग्रेचुइटी टू बी विथड्रॉन और विथहेल्ड, उसको बढ़ा नहीं सकते। तो पहले रिप्रेजेंटेशन लेंगे, रिप्रेजेंटेशन को एनालाइज करेंगे, फिर यूपीएससी के साथ कंसल्ट करेंगे और उसके बाद फाइनल ऑर्डर पास होगा कि जो पहला ऑर्डर में जितना परसेंटेज पेंशन और ग्रेचुइटी को विथहेल्ड और विथड्रॉन किया गया था उसको थोड़ा बढ़ाया दिया जाएगा, उसको थोड़ा एनहांस किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट चलेंगे, व्हेन इज डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है रूल 8 में। कब डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को मान लिया जाएगा, वो ऑलरेडी इनिशिएट हो गया। तो चलो अब देखते हैं फर्स्ट वन, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स शैल बी डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड ऑन द डेट ऑन व्हिच द स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस इज इशूड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट और पेंशनर, और इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन फ्रॉम एन अर्लियर डेट ऑन सच डेट एंड। फर्स्ट वन, जिस डेट में स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस इशू होगा गवर्नमेंट सर्वेंट को, उसी डेट से माना जाएगा कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स उसका इनिशिएशन शुरू हो गया। तो यहां पर जो अंडरलाइन है उसको याद रखना है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग केस में जिस डेट में स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस इशू होता है गवर्नमेंट सर्वेंट को, तो उस केस में जो सो कॉज नोटिस दिया जाता है वही है स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस। तो इशू होता है कि क्यों आपके ऊपर एक्शन नहीं होगा, तो उसी डेट से डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गया। और भी है, और इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज बीन, पहले से वो गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंशन है, और इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन फ्रॉम एन अर्लियर डेट ऑन सच डेट, पहले वो सस्पेंशन हुआ है मगर जिस डेट में एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस इशू होगा उसी डेट से मान लिया जाएगा कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गया। सेकेंड वन, इन केस ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड in the case of criminal proceedings on the date on which the complaint or report of a police officer of which the magistrate takes cognizance is made। तो बेसिकली जुडिशियल प्रोसीडिंग केस में यहाँ पर फर्स्ट वन है जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, जिस डेट में जो पुलिस ऑफिसर, कंसर्न पुलिस ऑफिसर वो कंप्लेंट और रिपोर्ट को पेश करता है इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट, उसी डेट से मान लिया जाएगा कि जुडिशियल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गया। सिविल प्रोसीडिंग केस में जिस डेट में एक्चुअली कोर्ट में केस फाइल होगा, सिविल प्रोसीडिंग्स केस में जिस डेट में कोर्ट में फाइल होगा केस, उसी डेट से मान लिया जाएगा कि सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गया। तो तीन चीज आपको याद रखना है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में जिस डेट में स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस इशू होगा उस डेट में मान लिया जाएगा कि चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट हो और पेंशनर हो, उसी डेट से मान लिया जाएगा कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गया। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जिस डेट में पुलिस ऑफिसर कंप्लेंट और रिपोर्ट को पेश करता है इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट एंड मैजिस्ट्रेट एक्चुअली पेरियूज द रिपोर्ट, उस डेट से मान लिया जाएगा कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग और जुडिशियल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गया। सिविल प्रोसीडिंग्स में जिस डेट में कोर्ट में एक्चुअली केस फाइल कर दिया गया उसी डेट से मान लिया जाएगा कि सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गया। और ये गवर्नमेंट सर्वेंट और बेसिकली पेंशनर के लिए समान रूल है। मीनिंग्स ऑफ मिसकंडक्ट, ये जो मिसकंडक्ट हम बोलते हैं कि बेसिकली ग्रेव मिसकंडक्ट, वो क्या है थोड़ा देखेंगे, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मिल सकता है। फर्स्ट वन, एनी करप्ट प्रैक्टिस, एनी करप्ट प्रैक्टिस ड्यूरिंग सर्विस उसको मिसकंडक्ट में माना जाएगा। एनी मिसकंडक्ट अंडर रिलेशन टू द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, यदि ऑफिशियल ड्यूटी में आप कुछ रूल को ब्रीच किया है तो वो भी मिसकंडक्ट में माना जाएगा।
और नेक्स्ट वन, यदि आपके वजह से कुछ गवर्नमेंट को लॉस हुआ है, पेकुनियरी लॉस, वो भी मिसकंडक्ट में माना जाएगा। तीन चीज को याद रखना है। ओके, फर्स्ट वन करप्ट प्रैक्टिस, सेकेंड वन ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस breached by the government servant during his service, or any due to the misconduct of the government servant, any pecuniary loss actually it is faced by the government। तो ये सब मिसकंडक्ट में आ जाता है, तो आपको याद रखना है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। रूल 9 अभी चलेंगे कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, रिलेटेड टू द ग्रुप ए ऑफिसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले रूल 10 में था, जो सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 था, वो रूल 10 में था। अभी ये अमेंडमेंट होकर जो सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 है, ये रूल 9 में है कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। इफ ए पेंशनर हु इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट was a member of Central Services Group A wishes to accept any commercial employment before the expiry of 1 year from the date of his retirement, he shall obtain the previous sanction of the government to such acceptance by submitting an application in Form 1। तो जस्ट रिटायरमेंट के बाद विद इन 1 ईयर ऑफ द रिटायरमेंट, आपको याद रखना है, विद इन 1 ईयर ऑफ द रिटायरमेंट यदि पेंशनर चाहता है कि कोई कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट करेगा, तो विद इन 1 ईयर ऑफ द रिटायरमेंट वो एक एप्लीकेशन, जो फॉर्म 1, इसको याद रखना है, एक एप्लीकेशन है फॉर्म 1, वो सबमिट करेगा और गवर्नमेंट को अप्रोच करेगा। ओके, बिफोर एक्सेप्टिंग कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट, फर्स्ट वन, द ग्रुप ए ऑफिसर टेक द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो एप्लीकेशन होता है फॉर्म 1, और यहां पर और एक क्वेश्चन मिलेगा, विद इन 1 ईयर ऑफ द रिटायरमेंट, जिस डेट में आपका रिटायरमेंट हुआ 1 ईयर के अंदर, ये इट इज रिलेटेड टू ग्रुप ए ऑफिसर। ठीक है, यदि वो ग्रुप ए ऑफिसर चाहता है कि कोई कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट करेगा आफ्टर रिटायरमेंट के बाद, देन विद इन 1 ईयर ऑफ द रिटायरमेंट ही मस्ट सबमिट फॉर्म 1 एंड अप्रोच टू द गवर्नमेंट फॉर परमिशन, राइट। Provided that a government servant who was permitted by the government to take up a particular form of commercial employment during his leave preparatory to retirement or during refusal leave। और ये मजा बात है कि रिटायरमेंट के पहले हम जानते हैं कि लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, जो मैक्सिमम 300 डेज ईएल ऑन लीव हम ले सकते हैं, 300 मैक्सिमम 300 ईएल, वही है लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। और वो सपोज नहीं ले सकता है, भी कभी कभी हम ईएल हम जानते हैं कि ऑन लीव वो इनकेस होता है, मगर ऑप्शन है, हम 300 डेज ईएल जस्ट बिफोर रिटायरमेंट, 300 डेज ईएल हम ले सकते हैं मैक्सिमम। इसको कहा जाता है लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। नहीं भी ले सकते हैं रिफ्यूज लीव, मगर उसी टाइम में तो ग्रुप ए ऑफिसर वो अप्रोच कर सकता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का परमिशन ले सकता है वही फॉर्म 1 सबमिट करके कि मुझे रिटायरमेंट के बाद मुझे कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में मुझे इन्वॉल्व होना है। तो ये लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में आप परमिशन ले लिया है, तो आपको रिटायरमेंट के बाद और परमिशन का जरूरत नहीं है, राइट। ये भी याद रखना है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट नेगोशिएट फॉर कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग सर्विस विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नेगोशिएट नहीं कर सकता कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए जस्ट आफ्टर रिटायरमेंट। The government servant shall not negotiate for commercial employment during services without prior permission of the administrative ministry or the concerned department। concern administrative ministry or department वो negotiate नहीं कर सकता सर्विस पीरियड में। ओके, negotiate नहीं कर सकता related to the commercial employment without prior permission of the administrative ministry or department। next one है, if an application for accepting a commercial employment within 1 year after retirement no communication is received from the government within 60 days, the permission shall be deemed to have been granted। तो हम ये जानते हैं कि ग्रुप ए ऑफिसर यदि वो कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट करना चाहता है आफ्टर रिटायरमेंट विद इन 1 ईयर ऑफ द रिटायरमेंट, वो फॉर्म 1 सबमिट करेगा और गवर्नमेंट को अप्रोच करेगा परमिशन के लिए। तो जिस डेट में वो फॉर्म 1 सबमिट किया, उसका 60 डेज के अंदर उसको गवर्नमेंट से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, तो ये मान लिया जाता है उसको परमिशन मिल गया। तो आपको 60 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस डेट में वो फॉर्म 1 को सबमिट किया, फॉर्म 1 जो एप्लीकेशन है सबमिट किया कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट करने के लिए विद इन 1 ईयर ऑफ द रिटायरमेंट, जिस डेट में वो अप्रोच किया उसी डेट से 60 डेज सरपास हो जाता है,
तब ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि गवर्नमेंट परमिशन दे दिया कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, तो अंडरलाइन में कर चुका हूं। नेक्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद इन 30 days of the receipt of the order of the government, a retired group A officer can make representation against refusal of government in granting permission for taking up any commercial employment। आप फॉर्म 1 सबमिट किया, कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के लिए आप परमिशन मांगा गवर्नमेंट को, मगर गवर्नमेंट आपको ऑर्डर दे दिया कि आपको कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं करना है, गवर्नमेंट मना कर दिया। तो जिस डेट में आपको ऑर्डर रिसीव हुआ, जो ऑर्डर में क्लियरली मेंशन है आप कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते जिस डेट में, उसी से आप 30 days के अंदर आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो कि गवर्नमेंट को कि फर्दर अगेन इट मस्ट बी एनालाइज्ड। तो आपको यहां पर एक क्वेश्चन मिल गया कि आप अप्रोच किया था, आपको गवर्नमेंट मना कर दिया, एक ऑर्डर आपको भेजा कि वो ऑर्डर में क्लियरली मेंशन है आपको कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं करना है, और जिस डेट में जो रिफ्यूजल ऑर्डर आपको एक्सेप्ट हुआ जिस डेट में, उसके 30 days के अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन देना है अगेन गवर्नमेंट को, राइट। यहां पर जो है, नो पेंशन शैल बी पेएबल टू द पेंशनर हु एक्सेप्ट सच एन एम्प्लॉयमेंट विदाउट प्रायर परमिशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड फॉर व्हिच ही इज सो एम्प्लॉयड और सच लॉन्गर पीरियड एज द गवर्नमेंट में डायरेक्ट। यदि आप बिना परमिशन से आप कोई कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट कर देते हो, तो उस केस में जितना पीरियड के लिए आप कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में रहोगे तब आपका पेंशन बंद हो सकता है, और इस केस में गवर्नमेंट एक्चुअली डायरेक्शन लेता है कि कितना दिन तक आपका पेंशन को विथहोल्ड किया जाएगा, ठीक है। तो बिना परमिशन से कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है ग्रुप ए ऑफिसर को, राइट। चलो, तो एक्सप्रेशन कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट मीन्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। जो कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट होगा इसमें क्या इट मीन्स इन्वॉल्व है, क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है। An employment in any capacity including that of an agent under a company, cooperative society, which includes holding of any office whether elective or otherwise, such as that of president, chairman, manager, secretary, treasurer and the like, and by whatever name called in such society. Firm or individual engaged in trading, commercial, industrial, financial or professional business, and includes also a directorship of such company and partnership of such firm, ये सब इंक्लूड है। चाहे आप एजेंट के आकार में, चाहे कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज्वाइन कर सकते हो, लाइक प्रेसिडेंट, चेयरमैन, मैनेजर, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जो भी पोस्ट सोसाइटी में है। और कोई आप फार्म और इंडिविजुअल एंगेज ट्रेडिंग, इसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो, ट्रेडिंग, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल और प्रोफेशनल बिजनेस में इंक्लूड हो सकते हो। और कहाँ पर डायरेक्टरशिप, डायरेक्टर बन सकते हो कंपनी, ओके, और एक पार्टनरशिप फार्म में। बट इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट अंडर ए बॉडी, कॉर्पोरेट, होली और सब्सटेंशियली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और ए स्टेट गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बॉडी और जो भी कॉर्पोरेट है जिसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है, जो बॉडी और कॉर्पोरेट को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है, उसमें आप जो है वो कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड नहीं हो सकता। एंड डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट अंडर ए बॉडी, कॉर्पोरेट, होली और सब्सटेंशियली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में क्या इंक्लूड नहीं हो सकता। नेक्स्ट रूल 10, एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट अंडर ए गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया। रूल 10 में क्लियरली मेंशन है, आपको एम्प्लॉयमेंट सपोज आपको ज्वाइन करना है इन अब्रोड में आफ्टर रिटायरमेंट, तो क्या करना होगा गवर्नमेंट सर्वेंट को। इफ ए पेंशनर हु इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट वाज ए मेंबर ऑफ सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए wishes to accept any employment under any government outside India, he shall obtain the previous permission of the central government for such acceptance, and no pension shall be payable to a pensioner who accepts such an employment without proper permission in respect of any period for which he is so employed or such longer period as the government may direct। ये भी वही है, यदि ग्रुप ए ऑफिसर वो रिटायरमेंट के बाद वो अब्रोड में वो एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट करना चाहता है तो गवर्नमेंट का परमिशन लेना चाहिए। वैसा ही सेम रूल है। सो प्रायर ऑफ दैट द ग्रुप ए ऑफिसर मस्ट टेक परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट इफ ही वांट टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन अब्रोड। यदि वो गवर्नमेंट का परमिशन नहीं लिया
और आउटसाइड ऑफ इंडिया में जाकर कोई भी सेक्टर में आप वो ज्वाइन कर लिया, तब उस केस में उसका पेंशन को विथहेल्ड कर दिया जाएगा जितना पीरियड तक वो वहाँ पर सर्विस रेंडर किया, और वो जो गवर्नमेंट डायरेक्शन देता है उसके बारे में। तो आपको आउटसाइड इंडिया में यदि आप रिटायरमेंट के बाद आउटसाइड इंडिया जाकर वहाँ पर आप इन्वॉल्व होते हो कोई जॉब में, तब गवर्नमेंट का परमिशन बहुत जरूरी है। सेकंड में, यदि आप लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, जो मैं बताया था, जो रिटायरमेंट के पहले जो आप 300 डेज ईएल है हम छुट्टी ले सकते हैं, तो उस पीरियड में सपोज हम गवर्नमेंट का परमिशन लिया है टू टेक एम्प्लॉयमेंट इन आउटसाइड आफ्टर रिटायरमेंट, तो उस केस में आफ्टर रिटायरमेंट और परमिशन लेना जरूरत नहीं है, फर्दर परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड। यदि लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में द कंसर्न एम्प्लॉई वो गवर्नमेंट का परमिशन ले चुका है कि मुझे रिटायरमेंट के बाद मुझे आउटसाइड इंडिया में कि अब्रोड में मुझे जॉब में इन्वॉल्व होना है, वो परमिशन ले चुका है, तो रिटायरमेंट के बाद और फर्दर परमिशन का जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वन, द रिक्वेस्ट ऑफ ए पेंशनर फॉर परमिशन टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट अंडर ए गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया shall be considered in accordance with the Government of India Transaction and Business Rules 1961, इसको याद रखना है, and then instructions issued by the government from time to time। ये जो है द रिक्वेस्ट ऑफ ए पेंशनर फॉर परमिशन टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट अंडर ए गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया shall be considered in accordance with the, ये जो एक रूल्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, ये जो रूल्स है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है उसके हिसाब से पेंशनर गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे आउटसाइड इंडिया में मुझे कोई भी इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट मुझे एक्सेप्ट करना है, तो इसी ये रूल है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। तो आज इतना ही था, ये पार्ट 2 था, रूल 7 to 10 बहुत अच्छे से मैं डिस्कस किया। ओके, जस्ट यू गो थ्रू इट प्रॉपरली with patience, you go through it, you can get so many informations, I underlined everything। ठीक है, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो my friends, please subscribe my channel so that you can get notification for my upcoming videos। So in description box also link is there, my telegram link is there, please click on it and join my telegram channel so that you can avail all the videos। उसके ऊपर एक MCQ also tomorrow, it means I will upload one MCQ, it means from rule 1 to 10 related to the CCS pension rules 2021। तो और भी पूरा पार्ट्स को मैं कवर करूंगा इन सब्सिक्वेंट टाइम, अच्छा इन्फॉर्मेशन सबको मिल जाएगा। तो फिर अगेन हम मिलेंगे। थैंक यू एंड नमस्कार।